Good afternoon to all my dear students, and welcome back to this paper. So today we are going to start. Already we have started with the unit 1 of the descriptive statistics, data condensation and presentation of data. So in this unit, this is a very basic type of unit, and in this unit, we are going to understand the definition of statistics. Means already we have discussed on it: definition of statistics, importance of statistics, scope of statistics, and limitation. I think scope of statistics we have discussed in the previous lecture. Definition, importance, and scope. Now, in this unit, we will discuss the limitations of statistics. Okay, so I just review the last lecture and would like to tell you that in the last lecture we have seen the definitions by a definition of statistics by Bolly, Webster's, Horace Sechrist, Yules and Kendall, and Crofton and Cowden. Among all the definitions, finally it was discussed that Crofton and Cowden's definition is the perfect one, means which describes and tells us about the collection, presentation, analysis, and interpretation of numerical data. Means this definition tells us about the collection, presentation, analysis, and interpretation of numerical data. Okay, so this is the definition we are going to carry ahead in all the remaining syllabus. Okay, so this will be the definition for us. We have to carry on. Now, importance of statistics we have seen last time. So statistics is important in every walk of life, and it has. I already told you that it is an indispensable part to any walk of life. Okay, means statistics and research. So research cannot be completed without statistics, which hugely depend for the data analysis. Okay, now planning. So planning is also for planning. Statistics is important for correct analysis and complex statistical data and forecasting of the future. Then economics, it is again very important. Index numbers and all these concepts are used. Just a minute. 1:30. Then business, it is very indispensable. Market research. Okay. Then statistics and industry. And in industry, there is one separate branch which takes care of the quality of the product manufactured in the industry, statistical quality control. Then statistics and mathematics. Now statistics and scope of statistics is highly important in the medical science. So there is a subject, another separate branch of statistics called as the biostatistics. Okay, so biostatistics, now it deals with the whatever the patient related data is there. So to analyze that data and to predict the situation and plan the better cure of the patient. So in just one line to tell, I can tell that it deals with the uh, patient's data and suggests the doctors regarding the situation of the patient and the future course of action to be taken, all these things. Just like अभी कोरोना का चल रहा था, कोरोना के दौरान वाईसीएम जो है यहाँ पे यशवंतराव चौहान हॉस्पिटल, ओके, मेडिकल, तो यहाँ पे जो है हर एक मेडिकल में स्टैटिस्टिशियंस होते हैं. देयर इज अ टीम ऑफ 3-4 स्टैटिस्टिशियन देयर. तो वो लोग क्या करते हैं, अभी कोरोना के दौरान पूरा डेटा जो है, कोरोना वैक्सीनेशन जो हो रहा था या फिर जो कोरोना से पेशेंट थे, उनके सारे डेटा इनके मेडिकल थ्रू इनके पास आता था. फिर वो एनालाइज करते थे इस डेटा को. उससे फिर पता चला कि अपने यहाँ पे जो है एक तरीके से अभी वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से हुआ है. तो एक इम्यूनिटी जो है, एक क्या बोलते हैं, एक मास इम्यूनिटी आ गई है. यानी कि 70% अगर लोगों को वैक्सीनेशन हो गया तो 30% लोगों को यानी कि ज्यादा करने की जरूरत है. यानी कि so there are some statisticians who study the data related to the patient and they suggest the course of action or they infer something to the medical staff. Okay, तो कहने का मतलब ये है कि मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, मेडिकल साइंस और स्टैट्स में काफी ज्यादा डिपेंडेंस रहता है.
Then statistics, psychology, and education. Again, there are certain tests in the psychology and education which are purely based on the statistics. Statistics and war, कम से कम रिसोर्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन को डिस्ट्रॉय कैसे करें, इसके लिए भी स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होती है. स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस मैंने पहले ही बताया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग, ओके, देन मशीन लर्निंग, ओके, देन पैटर्न रिकॉग्निशन. ये सब चीजों में जो है स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है, ऐसे कई फील्ड है. स्टैटिस्टिक्स एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी एक स्टैटिस्टिक्स का ब्रांच है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर भी जो है वो स्टैटिस्टिकल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा यील्ड यानी कि क्रॉप का कैसे यील्ड ले सके, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर के, उससे रिलेटेड यहाँ पे पूरा स्टडी होता है. यहाँ पे एनोवा, एनाकोवा, मैनाकोआ, ऑल दिस थिंग्स यानी कि इसमें अप्लाई किया जाए. प्योरली स्टैटिस्टिक्स ये है, स्टैटिस्टिक्स टोटली यहाँ पे अप्लीकेबल होता है एग्रीकल्चर. तो आज हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. So tell me, one or two students, do you understand the importance of statistics? Yes or no? Sir. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you. Yes, sir. Thank you for your quick response. So now let's come across the limitations of statistics. What are the limitations? So first of all, while studying the statistics, we must understand what are the limitations. क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है हमको पता है कि इसका स्कोप बहुत ज्यादा है आगे, बराबर, पर क्या नहीं हो सकता, उसके क्या लिमिटेशंस है, ये समझना भी बहुत जरूरी है. ओके, तो स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द मास ऑफ डेटा. मास ऑफ डेटा का मतलब क्या है कि दे नीड्स अ ग्रुप ऑफ डेटा एंड इट डू नॉट डील विद द इंडिविजुअल डेटा. यानी कि मान लो कि आपका क्लास है, ठीक है, आपका क्लास FYE है. ओके, तो मुझे अगर कंपैरिजन करना है FY BSc कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की, तो अभी F डिवीजन भी है और अभी D डिवीजन भी आने वाली है, बराबर. तो अभी सिर्फ मैं आपके क्लास का एनालिसिस करके नहीं चलेगा. FY BSc की और भी डिवीजन है, तो इनका भी होना चाहिए, इनका भी होना चाहिए, तब जाके मैं कुछ कॉमनली ये बोल सकता हूँ कि विच डिवीजन इज डूइंग बेटर. अगर इंडिविजुअल की बात किया जाए, आपके साथ आपके फ्रेंड्स का, यानी कि फ्रेंड्स सपोज यू अपीयर फॉर सम एग्जाम. ओके, तो आपका रिजल्ट हमने देखा. ओके, आपका रिजल्ट देखा और उसी में हमने बोला कि आप ही फर्स्ट आए हो, तो ऐसा नहीं चलेगा ना. ओके, आपके क्लास में 80 स्टूडेंट्स है, बराबर है, आपके क्लास में 80 स्टूडेंट्स है. तो जब मैं हर एक स्टूडेंट्स के मार्क्स देखूँ, कंपेयर करूंगा, तब जाके मैं बोलूंगा कि भाई हाँ, अभी आप जो है, आपको 92% है, आप जो है हाईएस्ट हो. ठीक है, बिना देखे बाकी के. तो कहने का मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द मास ऑफ डेटा, यानी कि उसके स्टैटिस्टिक्स के लिए ग्रुप ऑफ डेटा चाहिए. एक से ज्यादा डेटा रहा तो हम उसे मास ऑफ डेटा कहते हैं. इंडिविजुअल डेटा से वो ये नहीं करते. इंडिविजुअल डेटा हो, वैल्यू हो, या फिर इंडिविजुअल क्लास हो. जैसे मैंने क्लास की बात किया, क्लास में तो कई स्टूडेंट है, पर जब हम क्लास की बात कर रहे हैं तो तीनों क्लास कंसिडर होना चाहिए, ये भी और ये भी. ओके, अगर मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ तो इंडिविजुअल में जो भी प्रेजेंट है क्लास में, उन सबके डिस्कशन होना चाहिए. तो आप ये समझ लीजिए कि स्टैटिस्टिक्स हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास एक अच्छा खासा डेटा हो. ओके, इंडिविजुअल डेटा के लिए हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं कर सकते. आई होप यू गॉट द पॉइंट. नाउ स्टैटिस्टिक्स डील विद द क्वांटिटेटिव डेटा ओनली. ओके, अभी क्वांटिटेटिव डेटा, अभी यही एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करूंगा. मान लो कि ABCD जो है, ABCD एंड ये 5 स्टूडेंट्स है, इनको कुछ परसेंटेज मिले हैं. ठीक है, तो मैं पर्सनली उनके क्वालिटीज मुझे पता है. A बहुत हार्ड वर्कर है, B बहुत यानी कि हार्ड वर्कर है और इंटेलिजेंट है, ये शार्प है, इसकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, इसका ये अच्छा है, वो अच्छा है. तो मैं पढ़ाई के रिलेटेड मैंने 5 लोगों की 5 क्वालिटी गिना दी. क्या मैं उससे अंदाजा लगा सकता हूँ कि किसके रिजल्ट अच्छा है? मैं कुछ नहीं लगा सकता. स्टैटिस्टिक्स जो है वो डील करता है क्वांटिटेटिव डेटा से. जब मुझे पता चलेगा कि इसको जो है 87 मिले हैं, इसको 82 मिले हैं, इसको 92 मिले हैं, इसको 89 मिला है, और इसको जो है, इसको सपोज
मान लो कि 85% मिले, तब जाके मैं थोड़ा अंदाजा लगा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी है ना, तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि स्टूडेंट सी हैज स्कोर्ड हाईएस्ट। उनके क्वालिटीज के ऊपर से मैं नहीं बता सकता कि किसने कैसे परफॉर्म किया। इज इट करेक्ट और नॉट? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द क्वांटिटेटिव डेटा। अभी एक सवाल आपके माइंड में आना चाहिए या फिर आया भी होगा, सर क्वांटिटेटिव डेटा ही हम कहते हैं, बट अगर क्वालिटेटिव डेटा हो तो क्या करेंगे? इज दिस द क्वेश्चन इन योर माइंड? आप में से किसी के माइंड में ये सवाल आया? ओके, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आंसर कर देता हूँ। ओके, देखो, अभी क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है, क्वालिटेटिव डेटा है, हमको एनालाइज तो करना ही करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर, कोई एक तरीका निकालेंगे और वो जो क्वालिटी है ना उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, क्वालिटी को क्वांटिटी में हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, वो कैसे करेंगे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कंपटीशन होता है, कई तरह के कंपटीशन होते हैं ना, सिंगिंग कंपटीशन होता है, इज इट? सिंगिंग कंपटीशन होता है, डांसिंग कंपटीशन होता है, डांस इंडिया मोस्ट ड्रामेबाज वो बच्चों का प्रोग्राम आता है ना, डांसिंग कंपटीशन होता है। चलो कोई भी एक डांसिंग, इंडियन आइडल होता है ना, वो भी सिंगिंग कंपटीशन है। तो चलो कोई भी कंपटीशन लेते हैं, वहाँ पे जजेस बैठे होते हैं, 3 जजेस होते हैं ए बी सी, और यहाँ पे जो है कंटेस्टेंट का नाम दिया होता है 1 2। मान लो कि ये सेमीफाइनल है, इसमें सेमीफाइनल में मान लो कि 4 स्टूडेंट्स, 4 पार्टिसिपेंट है। ओके, तो अभी इनको क्वालिटी को जज करना होता है। अब हमने कहा कि स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द क्वांटिटेटिव डेटा ओनली, पर फिर ये कैसे क्या रिजल्ट लगा सकते हैं? तो आपने देखा होगा कि जजेस जो है इनको मार्क्स देते हैं आउट ऑफ 10, है ना, आउट ऑफ 10 इसको कितने मिले, इसको 8 मिले, इसको 7 मिले, इसको 9 मिले, इसको 10 मिले, है ना। फिर जजेस भी अपने अपने हिसाब से बाकी के जजेस दे देते हैं, यहाँ पे 9 मिले, यहाँ पे 10 मिले, इतना फर्क नहीं होगा, पर फिर भी चलो ठीक है, यहाँ पे 9 मिले और यहाँ पे भी 9 मिले। मान लो कि सी जजेस जो है उन्होंने इनको 10 दे दिए, इनको 8 दे दिए, इनको 10 दे दिए और इनको मान लो कि 8 ही दे दिए। तो अभी इनमें से पता चलेगा, तो क्या कर रहे हैं जजेस, जजेस जो रहते हैं वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, वो अच्छे सिंगर होंगे या फिर कोई जो भी है उनके फील्ड से रिलेटेड रहेंगे, तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या करते हैं, क्वालिटी को क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है उसके बेसिस पे उनको मार्क्स देते हैं। ठीक है, और उसके बाद उनका टोटलिंग किया जाता है, एवरेजिंग किया जाता है, और उसके बाद उनका फैसला होता है, डिसीजन होता है कि हु इज द विनर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यस सर। ओके, थैंक यू। यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्वालिटी को क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, पर एनालिसिस होगा, रिजल्ट तो लगेगा, रिजल्ट लगेगा तो हमको क्वांटिटी ही चाहिए। ठीक है, जजेस सभी को अच्छे बोलते हैं, बहुत अच्छा किया आपने, ये अच्छा किया, मस्त किया, वो किया, ये किया, सब बोलते हैं, पर उसके बेसिस पे रिजल्ट नहीं लगाया जा सकता। when it comes to the result declaration, they must assign quantity, means marks to them, then only the result is possible. Okay, so I hope you understand. We'll move ahead. उसके बाद statistics results are not accurately correct. Okay, ये सही है क्योंकि स्टैटिस्टिक जो है वो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है ना, ये आपको एक्यूरेट वैल्यू देगा, एक अंदाजा देगा, ये गेस, इट्स अ गेसिंग। ठीक है, ओके, इट्स अ गेसिंग। तो एक्यूरेटली करेक्ट यानी कि 100% सही होगा ऐसा जरूर नहीं। अभी आपने मौसम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात सुनी होगी, वो हर बार जो है आज का टेम्परेचर कैसे रहेगा, बारिश कब होगी, आने वाले कुछ दिनों बाद कैसा टेम्परेचर रहेगा, ह्यूमिडिटी कैसी रहेगी, ये सब बताते हैं, बारिश होने वाली नहीं होने वाली, है ना, ये सब आपको बताते हैं, है ना। तो वो भी एक गेस ही होता है, बट एक कॉमन मैन जिसको स्टैट्स नहीं पता है वो भी गेस करता है, और एक स्टैटिस्टिशियन वो भी गेस करता है, पर
फर्क इतना है कि इसके पास साइंटिफिक बेस होता है, इसके पास ये अंदाजा होता है, ठीक है। तो एक प्रकार से स्टैटिस्टिकल रिजल्ट यानी कि कैसे करेक्ट नहीं होता है, इट मे बी क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू, ओके। इट गिव्स यू द मोस्ट एक्यूरेट मोस्ट क्लोज मीन्स इट गिव्स यू द बेस्ट गेस, आई कैन से, है ना। तो एक ऐसा गेस बताता है जिसको कुछ साइंटिफिक रीजन है, ओके। जैसे कि अभी मौसम विभाग ने बता दिया कल बारिश होने वाली है, एक आम आदमी ने बता दिया जिसको स्टैट्स का कुछ नॉलेज नहीं, उसने बताया बारिश होगी, ठीक है। तो इसमें हम चांसेस क्या कहेंगे कि जो स्टैटिस्टिशियन बता रहा है वो ज्यादा एक्यूरेट होने के चांसेस है, क्योंकि उनके पास प्रूफ है, डेटा है, पास्ट डेटा को उन्होंने एनालाइज किया है, उसके बेसिस पे बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो रॉन्ग नहीं हो सकते स्टैटिस्टिशियन, वो भी रॉन्ग हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि उनका भी डेटा एक्यूरेट है, तो ये एक्यूरेट एग्जैक्ट साइंस यानी कि कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये एग्जैक्ट साइंस है, बराबर है। तो जैसे कि केमिस्ट्री की बात कर ले तो सॉल्यूशन 1 एडेड इन पर्टिकुलर क्वांटिटी विद सॉल्यूशन 2, देन आप क्या मिलने वाला है वो पता है पहले से, है ना। दो सॉल्यूशन एक साथ मिला देंगे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, तो क्या थर्ड सॉल्यूशन बनेगा वो सब पता है ना। तो ये एग्जैक्ट साइंस है, पर statistics are not exact one, it's and results are not accurately correct, okay, but it has scientific base of past data। उसके बाद statistics is liable to be misused। statistics का मिसयूज हो सकता है जिसको यानी कि हाफ नॉलेज है ना, जिसको सिर्फ बेसिक नॉलेज है, डीपली नॉलेज नहीं है, वो अगर इंटरप्रेट करेगा तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, एज्यूम करता हूँ कि आपको मीन मीडियन मोड वगैरह पता है, एक सिंपल सा एग्जांपल। अभी ये रोड है, इट इज व्हाट रोड, है ना। हमको कहा जाता है कि रोड के लेफ्ट साइड में चले, बराबर है। अब स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है कि हम हमेशा एवरेज वैल्यू कंसिडर करते हैं, है ना। हमारे पास 5 स्टूडेंट्स होंगे, 5 स्टूडेंट्स के हम अगर रिप्रेजेंटेटिव चाहिए तो हम एवरेजिंग करते हैं। एवरेज जनरली क्या होता है, सेंटर वैल्यू। तो अगर किसी को मिसयूज करना है तो फिर क्या कर सकता है, स्टैटिस्टिक के हिसाब से हम एवरेज कंसिडर करते हैं। तो ये रोड के साइड लेफ्ट या राइट पे नहीं चलना चाहिए, सेंटर में चलना चाहिए। अब मुझे बताओ, रेट रोड के सेंटर से चलना है, यहाँ पे ये अप्लाई करना है कि नहीं करना है, ये तो बताना चाहिए ना, बराबर। ये रोड है, यहाँ पे पीछे से गाड़ी आएगी धक्का मार दी या फिर एक्सीडेंट हो सकता है, बराबर। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, कौन सी चीज कहाँ पे अप्लाई करना है, सिचुएशन क्या है, और कैसे हमको उसे वो इट्स लाइक अ वेपन, इसको कैसे यूज करना है ये हमको पता होना चाहिए, ओके। जस्ट अ मिनट, देयर इज अ फोन कॉल। हाँ, ओके। तो कहने का मतलब जो है कि ये स्टैटिस्टिक्स जस्ट लाइक अ वेपन, यानी कि आप आपके पास मान लो कि कोई चीज दिया है, कोई ये दिया है, तो ये नॉलेज इज लाइक अ वेपन, फिर उसका आप मैनकाइंड के लिए यूज करते हो, अच्छे के लिए करते हो, बुरा करते हो, तो ये वो इसके लिए उसके ऊपर डिपेंड है, वो यूज करने वाले के ऊपर डिपेंड है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको स्टैटिस्टिक्स का पूरा नॉलेज है वो इसे डिटरमिन कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं है, पर जिसको पूरी नॉलेज नहीं है वो अगर यूज करना चाहेगा तो वो मिसयूज भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे एवरेज का कंसेप्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है रोड का, ओके। बट अगर किसी ने बोला कि स्टार्ट तो हमें हमेशा यही बताता है कि वी शुड डिपेंड अपॉन, वी शुड यूज द एवरेज वैल्यू, तो फिर यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए ये, है ना, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो स्टैट्स का जो है एक बहुत ही सिंपल वे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि स्टैट्स का मिसयूज हो सकता है। जनरली वी शुड बी we should have complete knowledge of particular subject or particular topic, then we can apply it, okay। then statistical laws are not exact, तो अभी ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बताया। स्टैटिस्टिकल लॉज जो होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, इट इज आर द साइंटिफिक गेस। साइंटिफिक इसलिए क्योंकि उसके पीछे साइंस होता है ना।
ये गेस ही होता है, बट वो गेस को पास्ट जो है डेटा, पास्ट हिस्ट्री है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बात करूं कि जैसे पेट्रोल प्राइसेस या फिर पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइसेस, बराबर है। तो आप ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते। जो भी अभी एक्सपर्ट जो बताते हैं कि आगे जाके इतना बढ़ेगा, अभी पेट्रोल के प्राइसेस 110 रुपये है, तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 3 साल बाद जो है उसका 300 हो जाएगा, जो भी है। या फिर चौथे साल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही आ जाएगी। ठीक है, तो सो आगे जाके तो इसका इतना बढ़ेगा कि इसके बाद तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही आएगा, सबकी जेब खाली हो जाएगी, बराबर है। तो अभी ये जो डेटा है वो कैसे, हमारे पास डेटा है ना, पिछले कई सालों का डेटा हमारे पास है। 10, 20, 50, 60 जितने भी साल है सबका, यानी कि ऑल दीज इयर्स डेटा इज हैविंग विद अस। तो इसके बेसिस पे अंदाजा लगाया जा सकता है ना। कहने का मतलब जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। अब मैंने बोल दिया कि 1 साल बाद 200 का, यानी कि एग्जैक्टली आज की डेट क्या है, आज की डेट है 25 अक्टूबर, हाँ 2021। मैंने बोल दिया कि 25 अक्टूबर 2022 मेरे अंदाजे से जो है 1 साल बाद 200 की प्राइस रहेगा। पर ये एग्जैक्टली उतना ही रहेगा क्या? नहीं रहेगा, कम ज्यादा होगा, प्लस माइनस होगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ, ओके, बट दीज आर नॉट एग्जैक्ट। यानी इतना, यानी इतना ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है। ओके, डिड यू गेट इट? Yes, sir. हेलो, ओके, थैंक यू। तो उसके बाद हम देखते हैं टू मेनी मेथड्स टू स्टडी द प्रॉब्लम्स। स्टैटिस्टिक्स में कई सारे मेथड्स होते हैं एक ही चीज को स्टडी करने के लिए। तो अभी हमको इसलिए वो मेथड्स कौन से सिचुएशन, और वो अलग अलग सिचुएशन में होते हैं, तो कौन से सिचुएशन में कौन सा अप्लाई करना चाहिए मेथड, ये हमको समझना चाहिए किसकी क्या लिमिटेशन है। जैसे अगर मैं बात करूँ वेरिएशन, यानी कि कंसिस्टेंसी, डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं है, इसके लिए यूज कर सकते हैं। डेटा कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम कर सकते हैं, है ना। तो अभी वेरिएशन स्टडी करना है तो आपके पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एक टॉपिक है, वो हम यूज करते हैं। उसमें आपके पास रेंज है, इसके पास क्वार्टाइल डेविएशन, ये भी मेजर है। उसके बाद मीन डेविएशन का मेथड भी, और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी मेथड है। अब देखो वेरिएशन स्टडी करना है तो आपके पास चारों मेथड अवेलेबल है। तो ये हमको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि हमारा पर्पस क्या है, और वो सिचुएशन कैसी है, और वो सिचुएशन में कौन सा रहेगा, और ये इंडिविजुअली जो मेथड्स है उनकी क्या लिमिटेशन है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसे कई टेक्निक्स होंगे। जैसे कि अभी रेंज में जो है 2 ही ऑब्जर्वेशन कंसिडर करता है, चाहे आपके पास 1000 डेटा हो या 10 डेटा हो, तो 2 ही वैल्यू कंसिडर करेगा, मिनिमम मैक्सिमम। क्वार्टल डेविएशन में भी 50% डेटा कंसिडर करता है, बाकी के 50% इग्नोर करता है। यहाँ पे 100% कंसिडर तो करता है, पर यहाँ पे प्लस माइनस का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम डिफरेंस ले लेते हैं x माइनस एक्स बार। तो कभी अगर ऑब्जर्वेशन से मीन वैल्यू अगर छोटी रही तो ये प्लस आ जाता है, अगर ऑब्जर्वेशन से ये मीन वैल्यू अगर बड़ी है तो फिर माइनस भी आ सकता है। तो ये मोस्ट इम्पैक्टेड विद द प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो ये इसका प्रॉब्लम है। बट अभी ये ऐसा मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन जो 100% सभी डेटा को कंसिडर करता है और इसमें कोई बायस नहीं है, तो इसलिए इसको बेस्ट करें। तो कहने का मतलब ये है, मुझे ये बताना है, एक ही टेक्निक के लिए जो है, एक ही इसके लिए आपको वेरिएशन यानी कि डेटा कंसिस्टेंस है या नहीं ये देखना है। पर उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस है, पर आप 4 में से कौन सा यूज करोगे? आप ऐसे रैंडमली पिक नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा डीप स्टडी होना चाहिए, क्योंकि मेथड्स बहुत ज्यादा है ना। अभी एवरेज की बात करें, एवरेज में भी यानी कि आपके पास अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है, मोड है, हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, ये सब चीजें, इनमें से कौन सी सिचुएशन में कौन सा, हर कोई पर्टिकुलर केस में
बेस्ट है। ओके, तो ऐसी चीजें है। तो देर आर टू मेनी मेथड्स दैट देयर एंड यू नीड टू स्टडी देम, चूज द वन ऑफ द मेथड विथ कंप्लीट नॉलेज। ओके, तो ये सब हो गया। तो ये सारे जो है इसके वेरिएशन ये है, लिमिटेशंस है। तो मैं अभी आगे बढ़ूंगा। तो कहने का मतलब इम्पोर्टेंट वन ये है कि इट डू नॉट डील विद इंडिविजुअल डेटा, इट डील्स विद द क्वांटिटेटिव डेटा ओनली, और रिजल्ट्स आर नॉट एक्यूरेटली करेक्ट एंड इट इज लायबल टू बी मिसयूज्ड। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। ओके, तो ये उसके बाद हम देखेंगे डेटा। ठीक है, तो अभी जो स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक पोर्शन था ये लेसन के अंदर में, कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये अब हमने कवर कर लिया है। अब हम आएंगे डेटा कंडेंसेशन, है ना, डेटा कंडेंसेशन। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स ये नया सब्जेक्ट हो सकता है किसी किसी के लिए, तो इसलिए हमने अभी इसको डिस्कस किया है डेटा। पर अभी हम अपने कोर सब्जेक्ट के ऊपर आ रहे हैं, डेटा कंडेंसेशन, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, डेटा कंडेंसेशन। तो डेटा कंडेंस करना यानी कि क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द कंडेंसेशन? क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे? डेटा को कंडेंस करना यानी कि क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? शॉर्ट करना। एग्जैक्टली, शॉर्ट करना, रिड्यूस करना। जब हम रिड्यूस करते हैं तो उसमें हम अननेसेसरी जो डिटेल्स है उसको ये कर देते हैं, साइड में रख देते हैं, है ना। तो डेटा कंडेंसेशन क्यों करना है फिर इसमें? सब कंडेंस का तो डेफिनेशन आपने मुझे बताया, अब डेटा का क्या मतलब है उसको भी समझना पड़ेगा। इसमें दो चीजें हैं, एक है डेटा और दूसरा है कंडेंस। कंडेंस से बना है कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंस करना यानी कि रिड्यूस करना। रिड्यूस करना इस तरीके से कि उसका जो इसेंस है वो नहीं निकलना चाहिए, उसका यानी कि क्या कहते हैं, अनइम्पोर्टेंट जो है, लेस इम्पोर्टेंट या फिर अनइम्पोर्टेंट डेटा को निकाल के जो जरूरी है वो इंफॉर्मेशन हमको आगे कैरी करना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है हमको कि कंडेंसेशन का मतलब होता है रिड्यूस करना, शॉर्ट करना। ठीक है, करेक्ट है। अब डेटा का मतलब क्या होता है ये थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। हम स्टैटिस्टिक्स में हमेशा रॉ डेटा की बात करते हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि रॉ डेटा का मतलब क्या होता है? Somebody can tell me what is raw data? Just try. I do not expect the correct, exact correct answer. आपको जो जैसे भी आता है आप बता सकते हो। रॉ डेटा यानी कि क्या होता है? अच्छा, रॉ फूड यानी कि क्या होता है, पता है आपको? यस सर, काम में नहीं आता उसको रॉ। रॉ फूड क्या होता है? जो काम में ठीक, नहीं आता किसी भी काम। हाँ, ओके। अब मान लो हम चपाती खाते हैं, सभी लोग चपाती खाते हैं, खाना खाने के साथ चपाती हम खाते हैं, बराबर है। अब ये मान लो चपाती है, ये चपाती डायरेक्टली जो है बना हुआ है क्या? नो सर। नहीं, ये अनाज से बना है ना। तो अनाज से चपाती बनाने का क्या प्रोसेस है फिर? जो हमको खेतों में अनाज मिलता है वो रॉ फॉर्म में होता है, या फिर हमारे पास जो चावल होते हैं, गेहूं होते हैं, दाल होती है, सब हम उसको प्रोसेस करके खाने लायक बनाते हैं ना। उसके बाद हमको वो अवेलेबल होता है खाने के लिए। हम ऐसे नहीं कि गेहूं लाए तो ऐसे ही कच्चे खा ले, राइस लाया तो चावल लाया हमने तो चावल ऐसे ही खाते हैं क्या, उनको पका के खाते हैं, बराबर है। तो मुझे, मैं अगर ये कहूँ कि ये प्रोसेस्ड फूड है, तो इसे क्या कहूंगा मैं, जो रॉ है? आप चपाती बनाते हो, चपाती खाते हो, फूड आइटम्स खाते हो, बराबर है, जो भी आपको पसंद हो वो खाते हो आप, उसको प्रोसेस किया जाता है, इट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस्ड फूड। तो फिर ये जो रॉ मटेरियल है उसको क्या कहेंगे?
यस यस, Starting of the process. ओके, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस। और किसी के पास कुछ आंसर है? Unprocessed food. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। सो दिस इज द अनप्रोसेस्ड। आपका नाम क्या बेटा? Sakshi. Okay, nice, Sakshi. Thank you. You have correctly told me about the raw data. तो raw data क्या होता है? अनप्रोसेस। इसके ऊपर प्रोसेस नहीं किया गया है, इसलिए रॉ है। जब इसके ऊपर प्रोसेस हो जाएगा तो हमको खाने के लिए मिलेगा, जो कि प्रोसेस्ड है। ओके, यानी कि उसमें कोई हर एक जो भी है, अभी मैं इसमें ये एग्जांपल के ऊपर नहीं बात करूंगा, अभी आपको समझ में आ गया हो, ठीक है? तो रॉ डेटा क्या है? अनप्रोसेस्ड डेटा, ठीक है? अब मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है? जैसे आप खाना, आप जहाँ पे आपके यहाँ पे खाना बनता है तो उसको प्रोसेस किया जाता है, गेहूँ आता है, चावल आते हैं, गेहूँ में फिर कचरा है कि नहीं वो देखते हैं, या फिर वो सब अभी रेडीमेड ही आता है सॉर्टेड। उसके बाद उसको आटा बनाते हैं, आटा बनने के बाद उसको गूंथा जाता है, यानी कि उसको चपाते छोटे छोटे ये किया जाता है, आटे के गोले। फिर उसके बाद बेलन से बेला जाता है, फिर उसे तवे पे पकाया जाता है, उसके बाद खाने के लिए रेडी होता है, बराबर है? अभी अगर आप गेहूं से चपाती बनने का जो प्रोसेस देखोगे तो उसमें 3-4 स्टेप। ओके, तो इसी तरीके से रॉ डेटा भी होता है। रॉ डेटा यानी कि अनप्रोसेस्ड डेटा। अनप्रोसेस्ड डेटा यानी कि ऐसा डेटा जो आपको फर्स्ट हैंड डेटा मिला है। फर्स्ट हैंड डेटा, फर्स्ट हैंड डेटा यानी कि आपको सर्वे से मिल सकता है ना? या फिर ये ऑब्जर्वेशन से, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको ऑब्जर्वेशन से मिल सकता है। ओके, ऑब्जर्वेशन एक ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, या फिर आप इंटरव्यू ले रहे हो तब मिल सकता है आपको, ठीक है? तो कई तरीके से मिल सकता है। अगर मैंने मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया, मैंने अभी अटेंडेंस लिख दिया, है ना? हर दिन मैं हर एक की अटेंडेंस लेता हूँ, तो अटेंडेंस मैंने लिख दिया, प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो एक पेज पे सारे स्टूडेंट्स का मैंने अगर नंबर भी लिख दिया है यहाँ पे, कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, ये भी रॉ डेटा हो जाएगा। मार्क्स अगर लिखता हूँ वैसे वो भी रॉ डेटा हो जाएगा। तो अनप्रोसेस्ड, क्योंकि मैंने उसको प्रोसेस नहीं किया है, जस्ट मेंशन किया है। ओके, तो अभी ये होता है। ये अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो डेटा कंडेंसेशन के दोनों वर्ड्स जो है उसको मीनिंग आपको समझ में आ गया है? यस और नो? Yes, sir. ओके, थैंक यू। अब हम रॉ जो है डेटा के टाइप्स देखेंगे। ये कोई भूलना नहीं है अभी, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? आपके पास कॉपी हो तो आपने कॉपी बना लेनी है, और जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं वो आप उसे यहाँ पे लिखते चले जाओ। अभी टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा जो है वो दो तरीके होते हैं। एक है क्वांटिटेटिव डेटा। आपको फॉन्ट दिखाई दे रहे क्या ठीक से, या बड़े फॉन्ट में लिखो? पहला होता है क्वांटिटेटिव डेटा, दूसरा होता है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है? तो पहले हम इसके बारे में सोचेंगे। क्वांटिटेटिव डेटा ये क्या होता है? ये हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, है ना? नंबर्स में होता है ना। फॉर एग्जांपल हम लिखने के लिए लिखेंगे हाइट, वेट, टेम्परेचर, मास, है ना? ऐसे कई एग्जांपल, सैलरी, ये सारे एग्जांपल्स किस चीज के हैं? ये क्वांटिटेटिव, ये सब नंबर्स प्रोवाइड करेंगे ना। हाइट कितना है नंबर्स में होगा, वेट नंबर्स में, टेम्परेचर नंबर्स में, मार्क्स, सैलरी सब नंबर्स में होगा। ओके, और ये क्या है? क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा, इसे हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। अगर आपने पहला लेक्चर मेरा सुना होगा तो मैंने बोला था कि उसमें आखिरी वाला यूनिट है एट्रीब्यूट। तो क्वालिटेटिव डेटा को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो इसमें सारे क्वालिटीज होते हैं, और ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। ओके, सो एक ही वर्ड लिखूंगा, क्वालिटीज। ऑल क्वालिटी विल बी देयर, कैनॉट एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, कैनॉट एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, ठीक है? आपको समझ में आ गया हैंडराइटिंग? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी स्टूडेंट, अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ, या तो मैं कहूँगा कि वो ऑनेस्ट है या नहीं है, बराबर?
क्या कहूँगा मैं, हम ऐसे कहेंगे क्या, माई फ्रेंड इज 80% ऑनेस्ट 20% डिसऑनेस्ट, ऐसे कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। ब्यूटी, कोई अगर आपकी फ्रेंड ब्यूटीफुल है तो आप कहोगे कि हाँ वो ब्यूटीफुल है, आप ऐसे नहीं कहोगे कि 90% तो ब्यूटीफुल लगती है, 10% जरा ये, आप ऐसा कहोगे क्या, नहीं कहोगे। आइदर योर फ्रेंड इज ब्यूटीफुल और नॉट ब्यूटीफुल, ओके, व्हाटएवर मे बी। नॉट ब्यूटीफुल का मतलब मे बी जस्ट लाइक अदर्स मीन्स, ओके। फिर आपका ग्रेड की बात अगर हो, आपको कई कई सब्जेक्ट में ग्रेड मिलते हैं, तो वो ग्रेड भी आपको ऐसा नहीं कि पार्शियली मिलेंगे, इसमें से ए में से कुछ मिला, बी में से कुछ मिला, ऐसा नहीं। आइदर यू गेट ए प्लस प्लस, ए प्लस, फिर बी मिलेगा, डी मिलेगा, जो भी है पर्टिकुलर एक ग्रेड मिलेगी आपको। नेशनलिटी, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो ये सारे क्वालिटीज इसमें आ जाते हैं, ऑल क्वालिटीज आर इंक्लूडेड इन दैट, ओके। तो आपको अभी समझ में आ गया क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो सकता है, क्वालिटेटिव डेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, ऑल क्वालिटीज इंक्लूड इन दैट, और इसे हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ओके। देन वी मूव ऑन टू द सब टाइप्स। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो है, अच्छा इस चीज में मैंने एक मैं रह गया है, वो मैं बताना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले डेटा जो है वो, जस्ट अ मिनट, ज्यादा चेंज नहीं है, एक वेरिएबल हो सकते हैं या कांस्टेंट हो सकते हैं, ये कड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है। डेटा के टाइप्स में सबसे पहले आएगा, डेटा के टाइप में सबसे पहले आएगा वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे ग्रेविटेशनल क्या कांस्टेंट, एवोगाड्रोस कांस्टेंट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे जितना होगा 9 पॉइंट जो भी है अभी 9.27, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज द सेम, है ना। तो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती, फिक्स होती है। कांस्टेंट जो होता है वो भी डेटा ही होता है ना, ये फिक्स्ड वैल्यूज होती है। तो वेरिएबल क्या होता है, वो चेंज होता है। वेरिएबल क्या होता है, चेंज होता है। जैसे कि हाइट, वेट, टेम्परेचर, इंडिविजुअल और सिटी टू सिटी वो चेंज होगा, है ना। अंडरस्टूड और नॉट? हेलो। Yes, sir. तो वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द वेरिएबल, द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच चेंजेस इट्स वैल्यू इज कॉल्ड एज वेरिएबल। आप हाइट, वेट, टेम्परेचर लिख सकते हो, जो चेंज होती रहती है। अगर मैं 5 स्टूडेंट्स मेरे सामने हैं, मैं उनको पूछूंगा उनके मार्क्स कितने हैं, वो चेंज होगा। उनके फैमिली में कितने मेंबर्स है, वो चेंज होगा। कोइंसिडेंटली किसी का सेम होगा तो वो अलग बात है। फिर उनके आई कलर नोट करूंगा, वो अलग हो सकता है, हेयर कलर अलग हो सकता है, ओके। तो ये सब चीजें है, ओके। और कांस्टेंट की बात करूं, अगर आप यहाँ पे पूछो जी की वैल्यू क्या है, और आप आउट ऑफ कंट्री पूछो किसी से भी, वहां पे पूछो, वो भी सेम आएगा, है ना। तो ये फिक्स्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके। देन वेरिएबल, वेरिएबल अभी मैंने आपको बता दिया दो टाइप के हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, सेम कहेंगे क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, और इसको हम कहेंगे क्वालिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल का भी हमने देखा है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो सकते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव न्यूमेरिकली हो सकते हैं, क्वालिटेटिव न्यूमेरिकली नहीं हो सकते, दीज आर द क्वालिटीज। अभी क्वांटिटेटिव वेरिएबल के दो टाइप्स, इसमें से है डिस्क्रीट वेरिएबल एंड इसमें है कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या है कि टेक्स सिंगल वैल्यू, सिंगल आइसोलेटेड वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात करना है तो मार्क्स, ओके, मार्क्स ऑफ
स्टूडेंट 1, इसको 50 मार्क्स मिले आउट ऑफ, मान लो कि आउट ऑफ में से चलो ठीक। स्टूडेंट 2 को जो है 45 मिले, ओके 45 मिले। स्टूडेंट 3 को 48 मिले। तो ये जो मार्क्स है वो कैसे ये दिए गए मैंने, इंडिविजुअल मार्क्स है ना, यानी कि स्टूडेंट 1 के पर्टिकुलर मार्क्स है। या फिर अगर मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे, आज मेरे 3 लेक्चर्स हुए, बराबर है, 3 लेक्चर्स हुए मेरे। तो 3 लेक्चर्स में अभी डे 1 को कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे, डे 2 को कितने थे, आज कितने प्रेजेंट है, बराबर। तो मान लो कि अभी 62 प्रेजेंट है, फिर 63 प्रेजेंट है, आज मान लो कि 59 स्टूडेंट प्रेजेंट है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो ये भी क्या है कि डिस्क्रीट है, टेक्स इंडिविजुअल वैल्यू। ऐसे नहीं लिखा मैंने 62 और 63, ऐसे नहीं लिख सकता हूँ मैं, आइदर 62 और 63, ओके। ये होगा तो होल नंबर ही होगा, करेक्ट। तो discrete variable, the variable which takes single isolated value is called as the discrete variable, okay। और continuous variable का मतलब क्या होता है, all possible values in a given range, all possible values in the given range और क्लास इंटरवल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम हमेशा बात करते हैं, हमको पढ़ाया जाता है अ लाइन इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, हमको क्या पढ़ाया जाता है, और ये ट्रू भी है, अ लाइन इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। ये जो लाइन है ए बी, ये क्या है, सेट ऑफ इनफाइनाइट। कोई नहीं बता सकता कि इसके अंदर में कितने पॉइंट है। इवन ये इतनी सी छोटी सी लाइन में हमने बताया, उसको भी नहीं बता सकते कि इसमें कितने, इसमें लाखों करोड़ों कई पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है ये छोटी सी छोटी लाइन के बारे में, ठीक है। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो अब इसको हम ये देखना चाहेंगे, सपोज इसको अभी मैंने कह दिया 0 to 1, तो मुझे ये देखना है, दिस इज ए इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट एक्स लाई बिटवीन 0 and 1। तो अभी ये क्या है, 0 और 1 के बीच में कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू हो सकती है ना। तो इसे हम कहेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल, है ना। तो जनरली ये एक तो रोस्टर इसमें सेट फॉर्म में दिया जा सकता है, या फिर इस तरीके से दिया जाता है, जैसे कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 0 to 10 कितने लोगों को मिले, 10 to 20 कितने लोगों को मिले, 20 to 30 कितने भी लोगों को मिले। फिर अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कैलकुलेट करता हूँ तो इसमें 5, 12, 3 ऐसे मार्क्स। तो ये एक तरीका होता है। एक तो आप इसे क्लास इंटरवल जैसे कि ये है, ऐसे आप प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर ये रोस्टर फॉर्म में, यानी कि सेट फॉर्म में ये दे सकते हो आप ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इट टेक्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन द पर्टिकुलर रेंज। ये क्या करता है, दी गई रेंज में सारे वैल्यूज को कंसिडर करता है। जैसे कि यहाँ पे रेंज क्या है 0 to 1, यहाँ पे रेंज क्या है 0 to 30। इसमें हमने क्लास इंटरवल दिए है, यहाँ पे इन्होंने सेट फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, यस और नो? ओके ओके, एनी डाउट टिल दिस? तो अब मैं नो सर। ओके अभी मैं आखिरी के 2 मिनट में, 5 मिनट में जो है, 5-6 मिनट में अभी आपको हम डिस्कस करेंगे कि डेटा किस तरह के, डेटा के और भी टाइप्स है डिपेंडिंग अपॉन द वे वी आर कलेक्टिंग इट, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो डेटा जो है, टाइप्स ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग। अभी जो हमने टाइप्स देखे हैं वो उनके बेसिक नेचर के हिसाब से हमने देखा है कि क्वालिटी चेंज होता है तो वेरिएबल है डेटा, फिक्स होता है तो कांस्टेंट कहते हैं। और आपको एक बात यहाँ पे समझना है, स्टैटिस्टिक्स में कांस्टेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है, इट हैज नो स्पेस। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इट इज ऑफ नो यूज, इसका कोई मतलब नहीं है, ये नहीं चाहिए हमको। ये क्या है, ये नहीं चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में कांस्टेंट्स की कोई जगह नहीं है, हमको चाहिए तो चाहिए सिर्फ ये वेरिएबल चाहिए हमको, ठीक है। हमको वेरिएबल से काम है, ओके। क्योंकि आप बताओ मुझे, आप 5 दोस्त हो और पांचों के मार्क्स अगर सेम है तो मुझे क्या जरूरत है एनालाइज करने की,
सबके मार्क्स अगर सेम आ गए तो मुझे क्या जरूरत है एनालाइज करने की, किसको कम है किसको ज्यादा है, क्या जरूरत पड़ी है मुझे, कुछ नहीं। जब वेरिएशन रहेगा तो ही तो एनालिसिस करना पड़ेगा ना, बराबर। डेटा में वेरिएशन रहेगा, चेंज रहेगा तो मुझे जरूरत होती है एनालिसिस करने की। अगर कांस्टेंट है, मान लो कि मार्क्स ऑफ एक्स वाई जेड, अब मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट 5 सबको 5 मिले 5 स्टूडेंट्स को, तो मुझे तो कोई स्कोप ही नहीं है स्टैटिस्टिक्स के अंदर में इसको डील करने की, कांस्टेंट है। ओके, तो हम स्टैटिस्टिक्स में हमेशा वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं, कांस्टेंट के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो उनका नेचर के हिसाब से हुआ है, चेंज है, फिक्स्ड है, या फिर चेंज में होता है वेरिएबल कहते हैं, उसमें भी दो तरह के नेचर है, न्यूमेरिकल और क्वालिटीज। तो हाइट वेट टेम्परेचर ये तो नंबर्स में आते हैं, ये चेंज हो सकते हैं सिटी टू सिटी, ये पर्सन टू पर्सन। एट्रीब्यूट क्वालिटी भी चेंज हो सकती है, यानी कि 10 स्टूडेंट्स अगर आप मेरे सामने आ गए और मैं उनके क्वालिटी चेक किया तो वो भी वेरी करेंगे, इसलिए वे वेरिएबल है। उसके बाद हमने डिस्क्रीट देखा, कंटिन्यूस देखा, तो ये इनके नेचर के हिसाब से, इंट्रिंसिक नेचर जो है उसके हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन किया। अब हम डेटा को अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग इट। ठीक है, तो इसके ऊपर हम अभी फोकस करेंगे। ओके, तो मेथड्स ऑफ कलेक्शन यानी कि क्या देखना है हमको। अरे एक मिनट, हाँ, मेथड्स ऑफ कलेक्शन यानी कि हमको ये देखना है कि किस तरीके से कलेक्ट होता है वो। तो अभी दो तरीका है जिससे डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। एक है यानी ये ऐसे टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा को हम अभी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ओके, और जिसको कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो हम आखिरी में 1-2 मिनट उनके लिए रखेंगे। ठीक है, सो प्राइमरी डेटा के बारे में बात करेंगे हम। इट इज अ अनप्रोसेस्ड डेटा और रॉ डेटा। प्राइमरी डेटा कैसा होता है, रॉ डेटा होता है, यानी कि जो हमको डायरेक्टली हम, अब ये जो प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा है, ये रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, रिसर्च में एंगेज रहते हैं, उनको ये पता ही होना चाहिए, और स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको भी प्रोजेक्ट है आगे जाके, आपको FY BSc कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस में प्रोजेक्ट करना है। तो आप सभी लोग सतर्क रहिए, इस टॉपिक को अच्छे से समझिए, प्राइमरी डेटा किसे कहते हैं, सेकेंडरी डेटा किसे कहते हैं, तो ये हम अभी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, अनप्रोसेस्ड डेटा, रॉ डेटा, जिसे हमने अभी अभी देखा है। उसके बाद ये प्राइमरी डेटा हमेशा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है जो इन्वेस्टिगेटर खुद से कलेक्ट करता है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटर जब खुद होके हम फील्ड में जाके कलेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट हैंड डेटा, यानी कि क्या, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, यानी कि ये पहले एग्जिस्ट नहीं था, हमने ये ऑब्टेन किया है ना, वी हैव ऑब्टेन्ड इट, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। जो इन्वेस्टिगेशन करता है ना उसे इन्वेस्टिगेटर। अब मैं एक कंसेप्ट आपको बता दूं, एक होता है इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर यानी कि कौन कौन से पीपल, जो रिसर्च कर रहा है, रिसर्चर। रिसर्चर यानी कि जो कर रहा है रिसर्च, उसको हम रिसर्चर कहेंगे। और दूसरा टर्म होता है रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन होते हैं, जिससे हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, है ना। इंफॉर्मेशन गिवर हम कहेंगे, इंफॉर्मेशन गिवर, जिनसे हमको इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं, जो इंफॉर्मेशन हमको देने वाले हैं, है ना। तो उसे हम ये कहेंगे, ठीक है, रिस्पोंडेंट। ठीक है, तो ये अनप्रोसेस्ड है, रॉ डेटा है, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है, रिसर्चर जो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है, मोस्टली कलेक्टेड थ्रू सर्वेज एंड इंक्वायरी। सर्वे आपको पता है, आपके यहाँ पे कई तरह के सर्वे आए होंगे, जैसे वैक्सीनेशन से रिलेटेड, यानी कि मीन्स जो भी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, उनकी तरफ से लोग आए होंगे, पूछा होगा कि घर में कितने लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कितने लोग हैं, कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है, इस तरह का सर्वे हुआ होगा आपके यहाँ पे। या फिर आफ्टर एवरी 10 years हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट द सेंसस, तो उस दौरान भी आपको याद आएगा कि सर्वे हुआ। हम कई तरह के सर्वे करते हैं और आपको प्रोजेक्ट में भी सर्वे है। ठीक है, तो मोस्टली कलेक्टेड टू सर्वे एंड इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है कि इंटरव्यू वगैरह अरेंज करके आपने जो लेते हैं, है ना। इंटरव्यू टेलीफोनिकली हो सकती है, डायरेक्टली हो सकते हैं, है ना। तो अभी मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, आपको प्राइमरी डेटा समझ में आया, यस और नो। हेलो।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके, थैंक यू। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट किया जा सकता है? डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इंटरव्यू। आप डायरेक्ट लोगों के पास जाइए जिससे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, उनसे बात कीजिए, उनसे इंटरव्यू लीजिए, उनसे क्वेश्चन कीजिए, तो आपको डायरेक्ट प्राइमरी डेटा मिल जाएगा। ओके। इनडायरेक्ट ओरल का इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आप टेलीफोनिकली भी आप बात कर सकते हो, आप जिससे आपको इंफॉर्मेशन, आपने आपके सर्वे के अंदर मान लो कि 10 लोगों को, 10 लोगों से आपको जानकारी इकट्ठा करनी है, तो आप 10 लोगों को अगर नहीं जा सकते तो आप उन्हें कॉल करके, फोन करके उनसे डेटा लीजिए। ओके। टेलीफोनी के लिए भी आपको कभी कभी टेलीफोन आता है ना सर्वे के रिलेटेड, ये है भाई, ये प्रोडक्ट अच्छा लगा कि नहीं लगा, ऐसा लगा कि, तो वो जो अलग अलग कंपनी के हमको फोन्स आते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, तो वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। और ये जो सबसे ज्यादा जो यूज है, वेरी कॉमन, यानी कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, वो है क्वेश्चन आयर मेथड, यानी कि सर्वे के थ्रू। देखिए, आप खुद एक क्वेश्चन आयर बनाते हो, क्वेश्चंस बनाते हो, 10-15 क्वेश्चंस बनाते हो, जो भी है आपके सर्वे के स्टडी के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस बनाते हो और वो सर्कुलेट करते हो, उनके रिस्पोंडेंट होता है, उनके आप सवाल पूछते हो, वो फिलअप करके देते हैं। कभी कभी हम मॉल में जाते हैं तो हमको गेट पे, एंट्रांस पे कुछ लोग मिलते हैं, वो कुछ कार्ड देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन टिक करने के लिए, आपको प्रोडक्ट कैसे लगा, ये कैसे लगा, वो, तो वो भी क्वेश्चन आवर का मेथड है। ठीक है। फिर वो सब इकट्ठा किए जाते हैं, उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, फिर वो स्टडी करते हैं कि उनके बिजनेस का प्लानिंग करते हैं। ठीक है। या फिर जरूरत हो तो कांटेक्ट भी करते हैं। तो ये सब पता हो गया आपको। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के कितने मेथड्स है? डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट ओरल कॉल, ओरल इन्वेस्टिगेशन, देन इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चन है। इसके बाद जो है मेरिट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ प्राइमरी डेटा। ठीक है। तो अभी प्राइमरी डेटा हम शॉर्ट में, अभी थोड़ा सा टाइम हो रहा है, तो अभी हम थोड़ा सा फास्टली देखेंगे। प्राइमरी डेटा हमेशा से एक आपको एडवांटेज होता है कि आपके पास डेटा जो है वो एक्यूरेट रहेगा, वेरी एक्यूरेट, और ये रिलायबल होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली ऑन द फील्ड जाके जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ऑथेंटिक डेटा होता है। ऑथेंटिक यानी कि वो खुद से हमने कंपेयर किया जाता है, वो खुद से हमने कलेक्ट किया होता है। ओके। तो सेकेंडरी डेटा के मामले में हमेशा प्राइमरी डेटा ऑथेंटिक होता है, ज़्यादा रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है, नॉट सब्जेक्ट टू पर्सनल बायस। इसमें पर्सनल बायस की जरूरत ही नहीं होती है। जैसे पर्सनल बायस यानी कि क्योंकि हम खुद ही कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें पर्सनल बायस नहीं आता है। अगर हम सेकेंडरी डेटा लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो सकता है। अगर कंपनी का डेटा हमने लिया, कंपनी के साइट्स के ऊपर से, तो कंपनी अपना सब कुछ एज इट इज डेटा नहीं देगा, उसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन तो होता ही होगा, तब जाके वो हमको ये देता है। तो ऐसा होता है। ठीक है। उसके बाद रिसर्चर एग्जिबिट्स ओनरशिप ऑफ द डेटा। जो भी डेटा कलेक्ट करता है प्राइमरी डेटा, तो उसके पास ओनरशिप होती है, चाहे तो वो उसको पब्लिकली अवेलेबल करा सकता है, उसका पेटेंट ले सकता है, या फिर वो सेल भी कर सकता है। और ये ऑथेंटिक डेटा है, मैंने पहले ही बोला, ये अप टू डेट होता है, क्योंकि रियल टाइम में हम कलेक्ट करते हैं ऑन द फील्ड जाके। और रिसर्चर का फुल कंट्रोल होता है डेटा के ऊपर, है ना, कि वो कंट्रोल कर सकता है डेटा को। मान लो कोई क्वेश्चन प्लस माइनस हो गए, इंक्लूड करना है वो इंक्लूड कर सकता है, डिलीट करना है नहीं वो कर सकता है ना। तो कंट्रोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, यानी कि पर्सनल बायस नहीं होता है इसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ओके। उसके बाद डीमेरिट्स। प्राइमरी डेटा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा, यानी कि ऑथेंटिक है, एक्यूरेट है, मोर रिलायबल है, बट उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है। इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है इसमें, वेरी एक्सपेंसिव। इसमें बहुत टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप जाते ऑन द फील्ड जाते हो तो ट्रांसपोर्टेशन आ गया,
मैन पावर आ गया, फिर जो भी उनके खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस रिलेटेड होते हैं, है ना, लॉजिंग बोर्डिंग जो भी, वो सब लगता है उसमें, रिक्वायर ह्यूज मैन पावर है। और ये ज़्यादा कॉमनली यूज नहीं होता है, यानी कि हर चीज में हम प्राइमरी डेटा यूज नहीं कर सकते, जहाँ पे फिजिबल है वहीं पे हम ये कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सब चीजें हैं। तो अभी हम नेक्स्ट टाइम जो है सेकेंडरी डेटा को हम देखेंगे, और आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा सेकेंडरी डेटा क्या होता है, तो आप थोड़ा सा पढ़ के आना। ओके, तो अभी मैं आपका अटेंडेंस लेता हूँ। सो आंसर योर रोल कॉल। यस, आज की डेट कितना है? 25। तो मैं यहाँ पे छोटे सा विंडो बना लेता हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट। तो मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी बताना अटेंडेंस, है ना। तो मैं एब्सेंट जो स्टूडेंट है उनको मैं नोट करूंगा यहाँ पे। ओके, रोल नंबर 01। प्रेजेंट सर। ओके, ठीक है, आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच।